about food security, development, security will not will be a totally different situation. So it is in recognition of that important role that farmers play in our existence and survival that we are doing the work that we're doing. And when the governing body of the International Treaty held its ninth session here in September, and thank you so much for wonderful hospitality that we experienced and the excellent organizational capacity that India had. The idea was to hold a global symposium on farmers' rights, first one. And the symposium we are holding is not just for the sake of having a social event. It is to be able to showcase, celebrate farmers and the work that they do, and at the same time, pay special recognition that for the work that they've done over the millennia, and they will continue to do, that there are certain rights that they should have, and they should be continue to support the work that they do to support them, and to encourage and promote those rights. Dr. Mohapatra had given a very wonderful overview and context of this in his opening remarks. And those rights also include their ability to save, share and reuse seeds that they have. But also there's an important aspect of farmers' rights which is being able to give them space to participate in decision-making processes within the community and within the country. And I think that's one way that India has also shown leadership. That it's important that they participate in decision making. That's a very fundamental aspect of their rights. And then also to share benefits from all the, from the utilization of plant genetic resources. Also important aspect of their rights is the protection of the knowledge that they have. Because the knowledge that they have is not just a matter of getting a seed and then planting it and then it grows. There's a lot that goes into that process, identifying which seeds are appropriate for certain conditions or what is needed for certain purposes. They have that knowledge, and over the millennia, before even formal science started, taking advantage of something, they have been able to develop varieties that are suited for certain conditions and for certain needs. So there's a need to protect that knowledge, to promote it, and ensure that we do not lose it. Because within each seed are thousands and maybe hundreds, thousands of years of accrued knowledge that have developed over time. Right now, the seeds that we have are not, many of them are, of course, do not occur in nature by themselves. It's by direct intervention, deliberate selection, trial and error, and experimentation that we came about within the varieties and the diversity that we have today. That is the basis of our food production. My colleague Tak had mentioned about diversity. We talk about resilience or resilient systems. The core of that resilience is diversity. And diversity is not just in diversity in the seeds themselves, but also in diversity of system, agricultural and production systems, which you have farmers who have been able to look at different landscapes, have adapted to production systems that are suitable for that, are able to optimize even marginal lands to be able to produce food that communities depend on. So those are the things that we recognize, and we believe that farmers should continue to be recognized, should be able to celebrate them, and to be able to continue to support the work that they do. And that is why we are holding this event as a symbol of that. Because that alone is not sufficient to recognize all the work that they do, but it's just another step in being able to say thank you for what you have been doing, showcase what they are doing so that more recognition is given to that, more resources are applied and taken to them to support their work, but also to be able to ensure that the benefits over time that come from using those seeds are also shared with them. So India has been a pioneer in a lot of ways in this regard. It was part of the negotiation of the international treaty right from that. Dr. Gautam there was a pioneer and has also been a veteran in the processes himself. So when the treaty was adopted in 2001, India was the first to really
domesticate that's the concept of farmers' right within its national laws, and it's led, in the implementation of that. And when we're here to share experiences from different parts of the world, India has very rich experiences that it also has to share with the rest of the world. And I think that's one of the subjects or the themes, I would say, of your Prime Minister in hosting the G20. That it's important that we share knowledge, we work together, and we work as a global community to address common issues and common needs and common challenges. And these challenges are growing by the day, whether it's from climate change, from environmental degradation, from civil unrest, or even from armed conflicts that's all around us. And it's from collaboration, international cooperation, that we can be able to address and overcome those challenges that we face. So with that, I think a general overview of the issues, but I think if you have some other questions, I'd be very much glad to do that. I will not, of course, continue to thank the government of India for their very warm hospitality and their incredible capacity and ability in their organizational capacity, which the G20 has also shown, but also the opportunity to congratulate you on the Chandrayaan that landed on the moon, which I think is a symbol that we can reach for the stars, but still firmly planted on the ground and work to feed the world and promote food security. Thank you, Dr. V.K. Singh, Agriculture Commissioner, please. So maybe you can do the stand, sir. The mic recording. है कृषक अधिकारों की बात होती है तो वो चाहे भारत का कृषक हो चाहे विदेशों का में कहीं पे भी हो, कृषक है, क्योंकि वही हमें फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो हर जगह का कृषक की समस्याएं भी शायद एक ही हैं, हर जगह के कृषकों के जो अधिकार हैं वो भी एक ही होने चाहिए। ऐसे विचार के साथ ही जब यहाँ पे पौधा किस्म कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम बना है 2001 में, तो उसमें सेक्शन 39 के तहत कुछ किसानों के अधिकारों की बात की गई और पूरा एक्ट को जो है 2 हिस्से में बांटा गया, जहाँ पे एक तरफ तो ब्रीडर राइट्स और रिसर्चर्स राइट्स की बात है, दूसरा उसी में कृषक अधिकार, जो कि पहले और कहीं किसी देश के पास ऐसा कोई अधिकार किसानों को नहीं दिया गया था, दैट टू विद रेफरेंस टू वैरायटीज, प्लांट वैरायटीज के संदर्भ में। तो ये जो अधिकार दिए गए कृषकों को, उसको कैसे हम अब जब भारत विश्व गुरु के भूमिका में आ रहा है 2047 तक, हम केवल अपना आत्मनिर्भरता की बात नहीं करते, हम कहते हैं कि हम पूरे विश्व को भोजन करा सकते हैं, इतनी अपने पास कैपेसिटी है, इतना अपने पास एग्रीकल्चर का विकास जो हो रहा है, इतना अच्छा नार्स का सिस्टम, अपना जो एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम है इतना अच्छा है, R&D सिस्टम है, प्राइवेट कंपनियों का बहुत अच्छे सिस्टम आ रहे हैं, सरकार के सारे SAUs हैं, ICR है, सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और तमाम ऐसे जो क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव में देखें या किसी में भी, तो हमारे पास हर चीज़ का उपाय उपलब्ध है या हो जाएगा आने वाले समय में। अभी मिलेट्स की बात हुई, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तमाम देशों को हम लोग यहाँ से किस्में दे सकते हैं, ऐसी बहुत सी हैं, कुटकी है, ये सब हैं जो कि केवल भारत के पास है, जो कि हाईली क्लाइमेट रिजिलियंट है। तो ऐसे मिलेट्स जो हैं वो उनकी बात हो रही है। तो हर जगह के किसानों को किस तरीके से क्या अधिकार मिले, इसी पे ये चर्चा होगी। भारत उसमें अग्रणी भूमिका कैसे निभा सकता है, हमारा एक्ट को और लोगों के पास तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, इसकी चर्चा होगी, जो कि आप लोग देखेंगे 2-3 दिन तक आगे कैसे इस पे क्या क्या होना है। आप लोग FAO से सब बाकी कैसे क्या है उसका विस्तृत जानकारी आप लोगों ने दे दी है। ITPGRFA हो, अपना PPVFR एक्ट हो, बायोडाइवर्सिटी एक्ट हो, सबके हार्मोनाइजेशन की भी बात है कि कैसे किसमें कितने अधिकार किसको मिलने चाहिए, वो सारी बातें होंगी इस पर। तो अगले 1-2 दिन इस पर चर्चा देखते हैं क्या कितना आगे हम लोग इसमें बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। मैं पंकज जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि 2 शब्द बताएं। Thank you, sir. I think most of the points have been covered. I listed will elaborate the Plant Authority भवन। मैं सर आपको पहले शुभकामनाएं दूंगा
बधाई दूंगा कि प्लांट अथॉरिटी भवन, एक इंडिपेंडेंट भवन हमारे अथॉरिटी के लिए बनाया गया है, उसका उद्घाटन भी कल माननीय राष्ट्रपति महोदया करेंगी। तो मैं अथॉरिटी को बधाई दूंगा और अथॉरिटी के सभी अधिकारियों को भी बधाई दूंगा। कल इस मौके पर इसका भवन का भी उद्घाटन किया जाएगा। थैंक यू। Thank you. Now we can open the floor for questions from media persons. Yeah. There is nothing. So media persons may please identify with their और names. नहीं, and- before that थोड़ा सा संक्षिप्त हमारे सूचना डॉक्टर PL गौतम साहब देंगे, उसके बाद फिर हम इंटरेक्शन। सबको नमस्कार। अभी आपके सामने बताया गया कि ये हम ये जो सिम्पोजियम कर रहे हैं, सिम्पोजियम जो कर रहे हैं इसके बारे में आपके सामने बड़ी विस्तृत चर्चा हुई। मैं थोड़ा सा आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो शायद आपकी रिपोर्टिंग में बड़ी मददगार होगी। पहली तो ये बात उठती है कि ये जो ये ट्रीटी है और ये सारी चीज़ें हैं और हमारा एक्ट है, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी। मैं थोड़ा सा आपको 1990 के दौर में ले जाता हूँ, जो इंसान के इतिहास में बहुत बड़ी एक ऐसी घटनाओं की तरफ इंगित करता है और जो अगली वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत एक यादगार दस्तक रहेगा। 1992 में एक ऐतिहासिक बहुत बड़ी संधि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हुई, जिसको कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। कि वो क्यों हुई कि जो जनन द्रव्य थे, जो जेनेटिक रिसोर्सेज थे, उनका हनन हो रहा था और एक ये भी माना जाता था कि जनन द्रव्य हनन हो रहा है तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है। उससे पहले हमें हमारा ये समझौता था आपस में कि जनन द्रव्य जो है ये कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमैनिटी है, हम सब की एक साझी विरासत है। ये हमारा 92 से पहले ये एक सिद्धांत था। परंतु जब इसका ज़्यादा हरण हो रहा था और साथ में एक बात आई, वाइब्रेसी शब्द किसी ने यूज़ किया, जब इस तरह की घटनाएं सामने आई तो CBD ने पहली बार रीअफर्म किया कि जो बायोडाइवर्सिटी किसी कंट्री की है वो उसकी संपदा है, सोवरेन राइट्स हो गए हमारे उसके, हर कंट्री के जिसकी टेरिटरी में है वो उसके। अब इसके साथ बात आ गई WTO ट्रिप्स। उसमें बात आई कि जो नई वैरायटी डेवलप होंगी उनको प्रोटेक्ट करो, या तो पेटेंट से करो या आप स्विजन सिस्टम लाइए या कोई और प्राविधान जो है इसके लिए करें। तो हम लोगों ने ये देखा कि हमारे लिए पेटेंटिंग और प्लांट वैरायटी संभव नहीं है, दिक्कत होगी, हम पेटेंटिंग के अगेंस्ट थे। तो उस वक्त ये बात आई कि हम स्विजन सिस्टम बनाएंगे, अपने देश के लिए जो विशेष प्रावधान है उसको रखें। तो उसी के अनुसार CBD में दो चीजें और छूट गई थी जो FAO को काम दिया गया। FAO को कहा गया कि आप दो चीजें तय करिए, एक तो ये कि फार्मर राइट्स को अपनी जो समझौता हो रहा है फूड क्रॉप्स के बारे में, फार्मर राइट के लिए अपनी ट्रीटी में समायोजन करो। दूसरा जो है कि आप जो है ex-situ कंजर्वेशन या कलेक्शन जो है जो FAO में है, ट्रस्ट में है, उनके बारे में समझौता करें। तो ये दो तीन चीज़ें थी जो FAO को दिया गया काम कि आप इस काम को पूरा करिए, कि फूड और एग्रीकल्चर आपका काम है तो आप इनके बारे में एक व्यवस्था करिए। इसलिए ये इंटरनेशनल ट्रीटी जो है ये साइन की गई, अडॉप्ट की गई 2001 में, और उसमें ये जो प्राविधान फार्मर राइट का और मल्टीलेटरल एक्सचेंज का कैसे करेंगे, एक देश से दूसरे देश में जन द्रव्यों की जरूरत है, कोई देश सर्वसंपन्न नहीं है जन द्रव्यों, हमें एक दूसरे से मटेरियल लेना है, पर ट्रांसपेरेंट मेथड होना चाहिए
जिसका वो मटेरियल है उसका वो राइट मिलना चाहिए, और आईपी पोर्टफोलियो जो है वो अपने आप सीटी को होना चाहिए। इसी को ध्यान रखते हुए ये टीटी इस पर काम कर रही है। और फार्मर राइट्स का जो इशू था, ये भारत द्वारा वहाँ हर नेगोशिएशन में इसको रिफ्लेक्ट किया गया था। और मुझे खुशी है कि 2001 में जब अक्टूबर नवंबर के बीच में जब फार्मर राइट सबसे बाद में समझौता हुआ, तो उस सभागार में हम भी थे और हम लोगों ने उसमें वो खुशी होती है कि इस फार्मर राइट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माना गया। अब ये साथ में भारत ने क्या किया कि बायपरेसी के केसेस हो रहे थे, तो हम लोगों ने ये जो एक्ट है, ये अपना एक्ट बनाया जो देश पूरे संसार का पहला एक्ट था, जिसमें प्राविधान है फार्मर्स राइट का। फार्मर राइट जैसे अभी व्याख्यान किया गया, हमारे फार्मर राइट की 3 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक सबसे बड़ी है कि किसान को इसमें रिसर्चर भी माना गया है, वो भी अपनी किस्मों को रजिस्टर कर सकता है। सबसे बड़ी डेविएशन कि किसान को वैज्ञानिक के रूप में भी अधिकार उपलब्ध है। दूसरा जो है कि वो अपनी जो भी सीड उसको नई वैरायटीज का उसको मिलता है, उसको अपने लोगों में एक्सचेंज कर सकता है। ये सारे प्रावधान किए गए जो डॉक्टर साहब ने बड़ी विस्तार से आपके सामने चर्चा की। और तीसरा राइट है ये कल्टीवेट कर सकता है अपनी खेती को, जो उसके राइट्स दे रखे हैं बड़ी अच्छी तरह से इस पुस्तिका में दे रखे हैं, आप पढ़ लेना। समय कम है तो मैं 2-3 बातें कह के अपनी बात खत्म करूँगा। अब ये अभी तक बात चली है कि ये जो परिभाषा है ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल की हो जाए तो हमारे जो समझौते हैं आपस में वो इजी हो जाते हैं। जैसे हमने कहीं से नई वैरायटी लेनी है, उसकी क्या टर्म्स होगी, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक समझौता है जिसमें जैसे हमने कोई भी नई किस्म बाहर से मंगवानी है, उसकी प्रोसेस है, तरीका वर्कआउट कर लिया, मल्टीलैटरल सिस्टम वर्कआउट किया गया, कैसे उसे नहीं तो हर आदमी के साथ समझौता करेंगे, इसलिए मल्टीलैटरल जो एग्रीमेंट्स हैं वो किए जाते हैं। ये स्पीड अप करता है, एफिशिएंसी लाता है और आपस में ट्रांसपेरेंसी आती है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने इसके माध्यम से लाई हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं ट्रीटी के समझौते से लेके और इस एक्ट को, भारतीय एक्ट के बनाने तक से लेकर के आज तक इसको मैं इसका पोषण करता रहा, और पोषण करते करते अच्छा लग रहा है कि हम लोग एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस इस देश में आयोजित कर रहे हैं। ये बड़े सम्मान की बात है और इसके लिए डॉक्टर महापात्रा को और ये कृषि विभाग को बहुत बहुत इसके लिए सराहना करूँगा कि एक वैश्विक स्तर पर हम किसान के हक क्या होने चाहिए। भिन्नता है, देशों में भिन्नता है, कई कहते हैं राइट नहीं देना, प्रिविलेज दे देंगे। हमारे यहाँ पे प्रिविलेज नहीं हमें चाहिए, हमें राइट चाहिए। तो मिलेंगे आपस में, आगे चल के बात होगी। वो यहाँ सिर्फ ये सिंपोजियम है, वैज्ञानिक आधार पर हम लोग इस चीज़ को सब लोग प्रेजेंट करेंगे, फिर बाद में ये जाकर के आगे जब नेगोशिएशन होती है उसमें बड़े लाभदायक होती है। तो आपकी लेखनी से अच्छी चीज़ लोगों तक जाए, किसानों तक जाए कि किसान के हित के लिए ये सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और देखिए देश ने ये किया कि जो किसान जो जन द्रव्य को जनरेशन से रख रहे हैं वो भी तो सेवा कर रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं देश के लिए। तो वो यदि कर रहे हैं तो हमारा भी दायित्व है कि हम उनको सम्मान करें। तो इस एक्ट में प्राविधान है कि जीनोम सेवियर अवार्ड के माध्यम से उन लोगों को सम्मानित किया जाए। और कल माननीय राष्ट्रपति महोदय जी इसको उन लोगों को सम्मानित भी करेंगे। और ये काफ़ी समय से काम चला है, आप लोग तो इसमें शामिल रहते हैं, तो वो लोगों में एक उत्साह पैदा हुआ है। और ख़ास करके जब कोविड का टाइम आया है, लोगों को ये लगा कि जो हमारे फूड सिस्टम है इसमें कहीं न कहीं अच्छी चीज़ें हैं। तो फूड सिस्टम को सुदृढ़ करना एफएओ का भी एक बहुत बड़ा एक काम चला हुआ है कि फूड सिस्टम कहाँ से सुदृढ़ होने, यदि फूड ही ना हो, यदि ये लोग जो कंजर्व कर रहे हैं यही वेरिएशन ना हो तो कहाँ से। तो एक फूड सिस्टम के ऊपर बात आती है। अब आप देखेंगे 3 दिन जो है बड़े नज़ारे के होंगे, बड़े अच्छे होंगे।
और मैं भी आपको कोड़े पे मिलता रहूँगा और कुछ न कुछ आपको बताता रहूँगा, क्योंकि मेरे पास तो बात ये इतने है जानकारी कि मैंने इसको उगते हुए देखा है पौधे से लेके, और बड़ी ये कहेंगे कि बहुत बहस हुई है, बहस में और बहस का निष्कर्ष निकला है। वो एक पूरे जो कार्यक्रम होगा इसके लिए भी आपको पहले से ही बधाई देते हैं और आप सबका स्वागत करते हैं कि इस इवेंट को अच्छी तरह से कवर करें। फार्मर कई बार बैकग्राउंड में रह जाता है, आप इसको आगे लाइए और अपने जो काम है जो हम लोगों ने किए हैं उसको सराहना अवश्य करनी चाहिए। ये संसार का सबसे पहला हमारा इनिशिएटिव था और ये इनिशिएटिव दूसरे देशों में भी कैसे हम उन लोगों को समझा सकते हैं ताकि हम आपस में आदान प्रदान उस लेवल पर कर सके। और FAO का जो कार्यक्रम है मल्टीलैटरल सिस्टम का है, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। अब देखो मैंने बात 1 मिनट ले लेता हूँ। एक्सेस है, जैसे जेनेटिक रिसोर्सेज जो है एक देश से दूसरे देश में जाने में समस्या आ रही है, मैं नहीं देना चाहता हूँ, दूसरा मुझे नहीं देना चाहता है, उससे क्या दोनों भूखे मरेंगे। एक्सचेंज होना है, क्या टर्म्स है उसके लिए इसमें टर्म्स भी बताए हैं कि इसके लिए मल्टीलैटरल सिस्टम के अंतर्गत जो फसलें इसमें लिखी हैं, 62 फसलें इसमें लिखी गई हैं जो इसमें समझौते के अंतर्गत आती हैं और भी इसमें आ जाएंगी। तो उसका एक तरीका है, कोशिश किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें उपलब्ध हों, वो उसका फ़ायदा उठाएं, चाहे नई किस्में विकास करने में या सीधे फसल के रूप में प्रयोग करने में। ये एक बहुत बड़ा काम है और किसान के काम को आप जोरों से जन जागरण तक जन तक पहुंचाइए, यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। और ये इसका जितनी कवरेज करें कितनी कम, आप इसको ले जाइए, जन तक ले जाइए और एक इसको मिशन बना लीजिए। इसने कितने लोगों को जागृत किया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया, आप सबका भी मेरी बात सुनी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब आपका कोई अगर क्वेरी है, कोई प्रश्न है? डॉक्टर महापात्र। हाँ जी। मैं प्रदीप कुमार। डॉक्टर महापात्र नमस्कार। ये चीज मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, 2001 में आपने एक्ट बना है और इतनी लंबा समय लग गए हैं आज ये ग्लोबल सिंपोजियम करने में, और उसके फार्मर्स का राइट जो है उसमें जो प्लांट वेराइटीज जो है उसकी जो कोई चैलेंज कर रहा है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं चाहता था कि सवाल का मैं खुद ही जवाब दे दूं, परंतु आपने सवाल पूछा इसलिए मैंने सोचा अच्छा है इसका। ऐसा है कि जैसे मैंने बताया कि घटना चक्र क्या था। घटना चक्र ये था, हमारी 2-3 चीज़ों के बारे में प्रमुख समस्या आई थी। अब बासमती की बात जानते हैं आप, हल्दी के बारे में जानते हैं आप। उस टाइम बायोपरेसी के सबसे ज़्यादा केसेस हुए थे और देश के लिए एक ज़रूरी थी कि हमारी एक व्यवस्था हो जिससे हम अपनी किस्मों को प्रोटेक्ट कर सकें। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए ये एक साधन मिला था जिससे फार्मर्स की वैरायटी भी रजिस्टर होती है और जो वैज्ञानिक विकसित कर रहे हैं नई वैरायटी उनका भी संरक्षण रहता है। तो इसलिए 2 लेजिस्लेशन, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट और PPVFRA एक्ट जो है, इनका लाना देश के हित में उन 3 जो हमारी जिम्मेवारी थी CBD के अनुसार